लास्ट क्लास हमर यूनिट 2 एंड चैप्टर 2 स्टार्ट हेतला। तो चैप्टर 2 तमन कौन पढ़ेथि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो एनालिसिस रो मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन रो मीनिंग, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग। तो लास्ट क्लास मु अगेन टिके रिपीट करछि। तो एनालिसिस रो मीनिंग तो मु कोन कहथिली टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा बाय यूजिंग सम टेक्निक्स। इंटरप्रिटेशन रो मीनिंग कहथिली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाइड डाटा। सेटा तमर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस रो मीनिंग मु कोन कहथिली analysis to simplify the financial data by using some techniques. Then interpretation, explain the meaning of simplified data. Meaning of simplified data. हैला एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मीनिंग कहथिली एनालिसिस मींस टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा बाय यूजिंग सम टेक्निक। किछि गुटे टेक्निक्स हमें यूज करिकि फाइनेंशियल डाटा को सिंप्लीफाई करछ। सेटा हमर एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन मींस कोन जो डाटा को तमे सिंप्लीफाई करछ, जो डाटा को तमे सिंप्लीफाई करछ से डाटा रो मीनिंग को एक्सप्लेन करछ जे कोन हमें ताको एनालिसिस करू। सेटा हमर इंटरप्रिटेशन। सेंटेंस भी गुटे कहथिली मोर इंपोर्टेंट बोली without analysis is meaningless without interpretation and interpretation is meaningless without analysis. Okay, then तमरा असला financial statement analysis। तमो मु कहितली financial statement analysis means both analysis and interpretations are included। financial statement analysis माने असला interpretation और analysis और interpretation दिले जाको include हेची। तो financial statement analysis रा meaning कोन कहितली process of determining financial strength and weakness of the business by establishing the relationship between the items of profit and loss account and balance sheet। कोन करछु हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होची गोटे प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कोन करछु बिजनेस रो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमें फाइंड आउट करछु और जज करछु और कैलकुलेट करछु बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन आउ गुटे मीनिंग मध्ये मु तुमको कहितली इट इज द प्रोसेस ऑफ evaluating it is the process of evaluating the financial performance, risk and strength, weakness जहाँ भी तमे कोई परियो है business by using some techniques। एडा तमरा financial statement analysis रो meaning थिला। लास्ट क्लास में तुमको objectives भी पढ़ी थिली and limitations भी पढ़ी थिली। objectives रे मु कोन कहथिली तमनको केतले का objectives कहथिली कोन जेंति हमर फाइंड आउट करछि सॉरी financial statement analysis फाइंड आउट करछि कोन business to assess the earning capacity of the business, managerial effectiveness and operational efficiency of the business, then to know the short term solvency and long term solvency and to know the future progress of the business, then asla tamara to know the changes in the profitability of the business of profitability amara kona changes hochi एते सब पढि तमको objectives। then limitations कोन कहली पांचटा limitation कहली कोन depend on financial statement there is different tools। second होछि तमरा कोन different tools यूज होछि techniques यूज होछि सेटा भीतर गोटे limitation। then third हला कोन non monetary factors are ignored। then fourth हला हमर कोन price level changes तक से शो करूनी financial statement analysis। last हला कोन interpretation कारण different persons हमर different interpretations करे द्वारा हम किछि मध्ये conclusion को आसी परनु सेटा हला तारो limitations। तो आज रो क्लास रे हम पढिबा कोन types of financial statement analysis। तो financial statement analysis रो types कोन अछि। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखो टाइप्स कौन आछि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो तमरा डिफरेंट टाइप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमरा डिफरेंट टाइप्स रछि। तो हम ताको को बेसिस रे डिवाइड करिया राइट। तो तमे हमरा कोन अछि तीनटा बेसिस अछि तीनटा बेसिस। फर्स्ट बेसिस होछि कोन on the basis of material used on the basis of material used second टा होछि कोन on the basis of
methods of operation or modes operandi कहूची methods of operation and on the basis of time horizon हैला तीनटा basis first basis होची on the basis of material used then next असला तमरा on the basis of methods of operation then असला तमरा time horizon एटा तमरा primary classification okay तो फर्स्ट हमारा कौन अछि on the basis of material use तो on the basis of material use रे हमारा again two type divide हेछि फर्स्ट होछि external analysis next होछि तमरा internal analysis फर्स्ट तमरा कौन on the basis of material use रे हमें ताको divide करछु again two types one is external analysis and second is internal analysis okay then first asa tomara on the basis of material use तमको मो क्वेश्चन पडिबो जति किछि टाइप्स लेखो मींस तमे बेसिस लेखिबोनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल और जहा भी मो लेखिबी सेटा लेखिबो तो सेम थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस रे कोन अछि horizontal analysis vertical analysis then time horizon रे अछि short term analysis long term analysis हैला बुझा पड़ा फर्स्ट तमरा कोन आसला on the basis of external internal on the basis of methods of operation horizontal vertical then आसला तमरा time horizon short term and long term तो फर्स्ट हमें पढिबा कोन external analysis and internal analysis आपको मोम करिबा डिवाइड करि लिख दबा एटा म तमको के लिखोची डिवाइड करि लिखि आराम से लिखबो फर्स्ट आसे तमरा कोन external on the basis of material used external internal external analysis and internal analysis तो external रे first point आछि कोन these analyses are undertaken by outsider के that is our bankers creditors money lenders etc okay external analysis is done by the outsider that is bankers creditors money lenders तो external analysis हमें हमर के करूची outsider जो माने हमर अछंती creditors bankers money lender कोन पे कारण they don't have these parties don't have any access access means rights any access to the internal records of the company internal records of the company तो फर्स्ट हमर थेला external analysis are done by the outsider that is money lender bankers creditors investor etc तो एमाने काहे की एनालिसिस करूछंती कारण से माने बिजनेस रो फाइनेंशियल पोजीशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी फाइनेंशियल वीकनेस कोन अछि जानिया पर अछि सेति में से माने एनालिसिस करूछंती तो एमाने एनालिसिस एमाने काहे की करूछंती these parties don't have any access to the internal record माने ए पार्टी माने जहां भी आउटसाइडर माने अछंती से माने बिजनेस रो इंटरनल रिकॉर्ड ऊपर से माने किसी मध्ये राइट्स नाही तो से माने केमती करबे they are depend on published financial statement and some other surveys that is okay बुझा पड़ा तमनको external analysis are done by the outsiders that is the bankers creditors money lender etc and these parties don't have any rights to the or don't have any access to the internal records of the company and these parties are depend on published financial statements बुझा पड़ा तमनको एबे आमे जिबा internal analysis are undertaken by the management
तो इंटरनल एनालिसिस के करछि इंटरनली के करछि मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट कोन पे करछि एंड मैनेजमेंट रो राइट्स अछि इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रो इंटरनल रिकॉर्ड जहां भी अछि तार राइट्स अछि मैनेजमेंट से यूज कर पाइबो तो ई कोन पे करछि टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस to monitor the performance of the business और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानार अछि फाइनेंशियल वीकनेस जानार अछि को डिपार्टमेंट केमति काम कर से सब जानार अछि सेति पई इंटरनल एनालिसिस कोन होछि इंटरनल एनालिसिस आर अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट हैव राइट टू द इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी then internal analysis is done by the management to monitor the performance of the business of progress business of performance business of financial strength and business of weakness and financial efficiency जानिया पई मैनेजमेंट को करछि एनालिसिस करछि और से एनालिसिस को हमें कहछु इंटरनल एनालिसिस बुझा पड़ा तमानकु on the basis of material use रे हमरो two types अछि there are two types of analysis on the basis of material use. First one is external analysis and second one is internal analysis. And external analysis is undertaken by the outsiders such as bankers, creditors, money lenders, and these parties are done analysis or these parties are undertaken analysis to know the financial position of the business, and these parties don't have any access or any rights to the internal records of the company, and these parties have depend upon the published financial statement, and that is external analysis. The internal analysis are undertaken by the management and internal analysis are undertaken by the management and management done the analysis to monitor the performance of the business. That is our external and internal analysis. So next number को कौन लिखितली on the basis of methods of operations. On the basis of methods of operations. कौन लिखती हूँ horizontal vertical horizontal and vertical. So first हम पढ़िबा horizontal. Okay, so this horizontal analysis refers to the कौन लिखिबा first रे comparison of financial data of a company for several years. कौन कहलिबु तुमको horizontal analysis refers to the comparison of financial data of a company for several years. गोटे कंपनी रो फाइनेंशियल डाटा को हमें कंपैरिजन करछु for several years means more than 1 year means कंपेयर हमें 4 to 5 years रो फाइनेंशियल डाटा को हमें कंपैरिजन करछु ताको हमें कहछु कोन horizontal analysis comparison of financial data of a company for several years. In this analysis financial data are presented horizontally over a number of columns. कौन कहलिबो तुमको second point in this analysis financial data are presented in horizontally over a number of columns. Okay, तो horizontal analysis में हमें financial data को horizontally present करछु over a number of columns. तुमको को देखे देबे केमती होची देखो तमरो जेमती हमें नहीं करबा बैलेंस शीट. ओके बैलेंस शीट तमरो एटी पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट एटू दीटा तमको अमाउंट को हम ऑलरेडी देखि छी दैट इज प्रीवियस ईयर करंट ईयर. तो हमें से करंट ईयर प्रीवियस ईयर ताको हमें 2 to 5 इयर्स नहीं परबा दैट देन से मतलब लिख लेडी 18 19 20 21. तो एमिति आपको कोन करछु हमें डाटा को फाइनेंशियल डाटा को हमें कोन करछु हॉरिजॉन्टली ताको प्रेजेंट करा होची 18 19
2021 एटा होची हमें हॉरिजॉन्टली फाइनेंशियल डाटा रे प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टली ओवर ए नंबर ऑफ कॉलम हॉरिजॉन्टली हमें ताको प्रेजेंट करछु ओवर ए नंबर ऑफ कॉलम्स ओके बुझा पड़ा तुमको थर्ड पॉइंट compared with a base year or standard year base year means कोन starting point और beginning point देखो जेते बोली तम लिखली 18 19 20 21 तो 2018 होची हमर कोन base year और beginning point और standard years तो ए year को नै कि हमें बाकी सब year को कंपैरिजन करिवो तो in this analysis financial data compared with a base year देखो 2019 20 21 को लिखी छी तो तमर तो स्टार्टिंग पॉइंट होची तो बेस ईयर इज ए चूजन और गिवन बिगिनिंग पॉइंट तो ए बिगिनिंग पॉइंट को हमें कहउछु कोन बेस ईयर तो ए ईयर को नै कि हमें तीनटा ईयर रो डाटा को कंपैरिजन करबा एटा होची हमर ए कंपैरिजन को ही हमें कहउछि कोन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो दिस एनालिसिस आल्सो नोन एज डायनामिक एनालिसिस आपको हमें कौन कहि पड़छु डायनामिक एनालिसिस बुझा पड़ा तमन को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को द अदर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज नोन एज डायनामिक एनालिसिस तो एग्जांपल होछ तमरा कोन कंपैरेटिव बैलेंसिंग और कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जांपल्स आर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस आगु को हमें प्रॉब्लम ए चैप्टर रे पढिबा कंपैरेटिव कोन एंड ट्रेंड कोन ओके तो ए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को मु अगेन रिपीट करछि फर्स्ट पॉइंट थिला कोन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ ए कंपनी फॉर सेवरल इयर्स गोटे कंपनी रो डाटा रो हमें सेवरल ईयर रो कंपैरिजन को कहउछु हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सेकंड पॉइंट कोन थिला फाइनेंशियल डाटा आर प्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली ओवर ए नंबर ऑफ कॉलम एटा कि तमन को शो करली ऑलरेडी जे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रे हमें फाइनेंशियल डाटा को हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ कॉलम्स रे प्रेजेंट करूछु देन कोन होची कंपेयर्ड विथ द स्टैंडर्ड ईयर और बेस ईयर ओटे स्टार्टिंग पॉइंट में होची से स्टार्टिंग पॉइंट को हमें कहूछु बेस ईयर एंड से बेस ईयर सहित बाकी सब ईयर हमें कंपैरिजन करूछु द अदर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज डायनामिक एनालिसिस द एग्जांपल्स होची कोन कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस तो एटा तो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नेक्स्ट हमें जीवा वर्टिकल एनालिसिस okay vertical analysis कोन comparison of comparison of different items of financial statement of one accounting year कौन लिखली मो वर्टिकल एनालिसिस रो मीनिंग होची कोन कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर मींस वर्टिकल एनालिसिस मींस कोन गोटे अकाउंटिंग ईयर भीतर ही हमें आइटम्स को कंपेयर करबा सेटा होची हमरा वर्टिकल एनालिसिस तो से गोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रु ही हमें गोटे फिगर को बेस फिगर रिया होची जेमति तमन होची देली तमरा इनकम स्टेटमेंट देखो इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट अछि हमर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तापरे ऑल एक्सपेंसेस तो कौन कहली मो वर्टिकल मींस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर तो हमें केवल गोटे अकाउंटिंग ईयर रे ही तारा कंपैरिजन करूछु सेटा होची हमरा वर्टिकल एनालिसिस
तो एठी हमर बेस कोन होची गोटे आइटम्स को हमें बेस नउछु जेमिति इनकम स्टेटमेंट रे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस नहीं की बाकी सब जहां एलिमेंट्स अछि जहां आइटम्स अछि से सब को हमें कंपैरिजन करछु सेटा होची हमर वर्टिकल एनालिसिस। तो ये बैलेंस शीट रे टोटल निया होची लायबिलिटी टोटल और एसेट्स टोटल को नहीं की बाकी सब बैलेंस शीट जहां आइटम्स अछि से आइटम को हमें कंपेयर करछु सेटा होची हमर वर्टिकल एनालिसिस। In this analysis, a figure taken from the statements, that is income statement रे revenue from operations and balance sheet रे total। तो ये revenue from operations को ही हमें नहीं कि base गोटे गोटे आइटम्स को कंपेयर करूछु ता सहित revenue from operations सहित एटा होछि हमर vertical analysis। तो vertical analysis also known as static analysis, STATIC। The other name of vertical analysis is static analysis। Examples: common size statements, common size statement, accounting ratio। हला इडला तारो examples। आउ थे मु तमन को कोइसी vertical analysis means comparison of different items of financial data with the items of financial statements of one accounting year। आउ थे मु कोची comparison of different items of financial statement of one accounting year। गोटे accounting year रो financial statement रो items को compare करबा ही हमें कहूछु vertical analysis। तो तार base कोन होची a figure taken from that financial statement to compare the other items। तो financial statement रो गोटे figure को base निया होची बाकी सब आइटम्स को ता सहित कंपेयर करा होची सेटा होची हमर वर्टिकल एनालिसिस। तो वर्टिकल एनालिसिस अदर नेम होची स्टैटिक एनालिसिस। एग्जांपल होची कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोस। एटा से हमर वर्टिकल एनालिसिस हमको डिफरेंस मु क्वेश्चन देबी डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल देन डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट हमर कोन थिला टाइम हॉरिजॉन। टाइम horizon, short term, long term। Okay, तो short term analysis कौन? Short term analysis means to know the paying capacity or liquidity position, short term liquidity or short term liquidity position, that is to pay current liability। तो short term analysis and long term analysis रो मीनिंग कोन? short term analysis द्वारा हमें कोन जानि पड़छु to know the short term liquidity positions or paying capacity, that is to pay current liability। तो गोटे बिजनेस रो करंट लायबिलिटी पे करिया पई कैपेबल अछि ना नाही सेटा हमें जानि पड़छु का द्वारा, that is short term analysis। and long term analysis means to pay long term liability or to pay long term liability or long term or short term liquidity, long term liquidity। okay, to pay long term liability एटा होय हमर long term analysis। तो long term analysis रे कोन होची हमें जानि पड़छु बिजनेस रो long term analysis refers to the analysis which is known to pay the long term liability, and short term means to pay current liability and long term means to pay long term liability। तो एटा से हमर टाइम होरिजन। तो ए तीनटा बेसिस छाडी की मध्य हमर दिस प्राइमरी क्लासिफिकेशन को छाडी की मध्य हमर आउटी गोटे क्लासिफाई अछि कोन ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व। entities on the basis of entities involved divided into two types। first होची
cross selection analysis, that is inter-firm and time series analysis, that is intra-firm. Okay, so on the basis of entities involved, there are two types of analysis. One is cross selection analysis and another is time series analysis. तो क्रॉस सिलेक्शन एनालिसिस में दीटा बिजनेस और दीटा कंपनी को कंपैरिजन करिया होस तमरा क्रॉस सिलेक्शन एनालिसिस फॉर सेम पीरियड, ओके, और टू कंपटीटर्स जो कंपैरिजन होची ताको हमें कोई परिबा क्रॉस सिलेक्शन एनालिसिस और इंटर फॉर्म एनालिसिस. इन दिस एनालिसिस इंक्लूड्स कंपैरिजन ऑफ companies or two similar companies for same period or for one accounting period हमें कहि पातिबा सेटा होछ हमर क्रॉस सिलेक्शन एनालिसिस. दिस कंपैरिजन ऑफ two similar companies or two competitors for same period सेटा होछ हमर क्रॉस सिलेक्शन एनालिसिस. देन इंट्रा फॉर्म एनालिसिस मींस गोटे कंपनी रो ही एनालिसिस करबा फॉर सेवरल इयर्स, for several years, that is intra-firm analysis. बुझा पड़ा तमन को क्रॉस सिलेक्शन एंड टाइम सीरीज. इंट्रा-फर्म मींस गोटे कंपनी रो ही सेवरल इयर्स को हमें कंपैरिजन करे सेटा होची इंट्रा-फर्म. देन कंपैरिजन ऑफ टू कंपनीज फॉर सेम पीरियड एटा होची हमरा इंटर-फर्म, दैट इज क्रॉस सिलेक्शन एंड टाइम सीरीज. एटा होची हमरा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अगेन मु रिपीट करछि कोन कोन हमरा बेसिस थिला डिवाइड हला. Okay, first our basis thila kono on the basis of materials used, external analysis, internal analysis. एटा से तमरा कोन methods of operations, horizontal, vertical. Then असला तमरा टाइम, horizon, short term analysis, long term analysis. हैला. देन ए तीनटा को छाडी की प्राइमरी क्लासिफिकेशन आउट गुथिला कोन ऑन द बेसिस ऑफ entities involved. Interform, that is cross selection. Then ase tamara time series, that is intraform. एटा थिला तमरा क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ऑन द बेसिस ऑफ तीनटा बेसिस हमें डिवाइड करछु. फर्स्ट है प्राइमरी, on the basis of material used, external analysis, internal analysis, on the basis of methods of operation, horizontal analysis, vertical analysis, on the basis of time horizons, short term analysis and long term analysis. Then also on the basis of entities involved, cross selection analysis and time series analysis. Cross selection means inter-firm analysis, time series means intra-firm analysis. So it is तमरो basis. तो तमे कोन कहबो ए सबुर डिफरेंस लिखिबो, difference between external internal, then difference between horizontal vertical, then difference between short term and long term. तो थिला तमरो types of financial statement analysis. Okay, सरला जहाँ भी तुम डाउट अच्छी मत कॉल करी पचारि पार, नोट्स अपडेट करो, वीडियो को देख एंड मोस्ट इंपोर्टेंट तुमको मु असाइनमेंट देइथिली तो किए जणे मध्य मते नोट्स सेंड करना तो तुमने असाइनमेंट्स को करो. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास.